Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Sajjad Mohsin. Today teaching you the course Human-Computer Interaction. Before I start my lecture, just a brief about myself first. I've done my PhD in computer science and artificial intelligence from Muran Institute of Technology, Hokkaido, Japan. I did my MS also from there. Before that, I have done my MSc in computer science from Quaid-e-Azam University, Pakistan. I have experience of over 27 years now in computer science. Currently, I am professor as well as dean, Faculty of Information Science and Technology, ComSets Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan. Before that, I was chairman, and before that I was head of the department as well as associate professor. And before coming to Pakistan, I was a research assistant with Professor Yukinori Suzuki at Muran Institute of Technology, Japan. I've done teaching assistants as well with Yasushi Honda at the same institute. And before going to Japan, I was a system analyst at Central Telecom Research Laboratories, PTCL, from July 1992 to September 2003. And before that, just after my MSc from Quaid-e-Azam University, I joined National Institute of Electronics, Islamabad, Pakistan, from June 1987 till July 1992. So that was my work experience. As a researcher, I've got the honor of having 3 research grants, one from Higher Education Commission of 0.6 million rupees, then another from National ICT R&D Fund, and that was as a co-PI, that was worth, and another one was from National ICT R&D Fund, and that as a co-PI, and that worth 11 million Pakistan rupees. And one another distinction which I had is that I am a joint project director at the grant from Grand Challenges Canada, which is worth Canadian $1 million. I have the honor of being a distinguished professor of IT by ComSets. I am also member of the editorial board of IEEE Transaction of Fuzzy Systems. I have the honor of being editorial board of several other journals as well. I am also member of Australian Computer Society. I was awarded scholarship for my MS PhD from Japanese government, Ministry of Education, that is called MEXT scholarship, and I was also awarded merit scholarship throughout my MSc career in Quaid-e-Azam University. So this was brief about myself. Now about HCI, what we really want to get from this course. Actually, these are the course learning outcomes. Upon completion of the course, students will be able to explain human factors of HCI, including human body, physical abilities, ergonomics, accessibility, health issues, cognitive load, and psychology. These are the human factors which are involved in HCI, and the student is also able to explain hardware factor of HCI, including different input and output devices, example keyboard, mouse, and touch screen, as I am using right now. Understand different key elements from which user interfaces are constructed. Implement user-centered approach in software development process and apply suitable techniques for collecting user requirement and analyzing tasks. Evaluate and
pair user interfaces using different techniques such as laboratory experiment and expert reviews. So these are the course learning outcomes from human computer interface, or HCI in short form. Recommended resources like textbooks. We are using Human Computer Interaction of Alan Dix 3rd edition. Other textbook which we are following in our lectures are Designing Interactive System, A Comprehensive Guide to HCI, and other resources available on your screen. You can see I have the PDF copy of Human Computer Interaction, and that will be shared with you. So what would be the lecture today? Today we'll talk about Introduction to Human Computer Interaction, and we'll talk about alarm clock, DOS time versus software application, Don Norman's door example, the human, that is information input output like visual, auditory, haptic, movement. जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे पढ़ाते जाएंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे. I will try to use both English and Urdu, mixture of both. मकसद आपको समझाना है so that the understanding could go. Human computer interface human computer interaction क्यों ज़रूरी है? Human computer interaction का कोर्स इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे ह्यूमन की इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसका इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि किसी भी ह्यूमन को, नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट, किसी भी ह्यूमन को उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो. सो ये एक ऐसा ही फील्ड है कि जो अब बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, इसकी सख्त ज़रूरत पेश आ रही है. और चीज़ जैसे जैसे आप कोर्स को पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि कहाँ से हम कहाँ पहुँचे हैं. गोल्स क्या हैं HCI के? इसको यूज़फुल होना चाहिए. मकसद क्या है? अकम्प्लिश व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम वो अकम्प्लिश नहीं कर सकते, वो कुछ हम ले नहीं सकते जो रिक्वायर्ड है, तो फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब काम कर रहे हों, प्ले म्यूज़िक, कुक डिनर, फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी करना हो, उसमें हमारे लिए इंटरेक्ट करना कंप्यूटर के साथ आसान हो जाए. इसको यूजेबल होना चाहिए. जितना नेचुरली करेंगे, जितना आसानी से करेंगे, उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा. और इट शुड बी विदाउट डेंजर ऑफ एरर. इसमें जिसको हम जितना एरर फ्री बना सकते हैं, उतना ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी, यूजेबल हो जाएगी. अगर हम इसको एरर प्रोन रखेंगे तो फिर थोड़े दिनों बाद इसको कोई यूज नहीं करना चाहेगा, जो भी काम कर रहा होगा कंप्यूटर के साथ. It is used so that people should able to use it. अगर हम इसको यूज नहीं करवा सकेंगे तो हमारे लिए HCI करना बेकार है. और इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये खुद से एंगेज कर ले, और इट शुड बी फन. हम कंप्यूटर को जब यूज़ कर रहे हों अपने किसी भी काम के लिए, तो हम इसको फ़न के तौर पर यूज़ करें रादर देन कम्बरसम, या हमें बोरियत होनी शुरू हो जाए उस काम के लिए. अब ये अलार्म क्लॉक है जो पहले ज़माने में होती थी, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, जिसमें अलार्म को हम मैनुअली फिट करते थे और फिर टाइम सेट कर देते थे. और उस वक्त क्योंकि ये 12 घंटे की क्लॉक होती थी, तो अलार्म अगर हमने 5 बजे का सेट कर दिया है तो वो सुबह 5 बजे भी बजता था और शाम 5 बजे भी बजता था. सो हमारे पास ये एक मैनुअल तरीका था जिसके तहत हम अपने अलार्म को सेट करते थे और उठा करते थे. फिर जब कंप्यूटर, और ख़ास तौर पर अब हम कंप्यूटर की जब बात करें तो दिस इज़ आफ्टर पर्सनल कंप्यूटर, PC आने के बाद से की बात कर रहे हैं. तो DOS जब PC में आया था नया नया, तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सिस्टम था, और उसमें अगर हमें टाइम देखना होता था
टाइम कुछ इस शक्ल में आता था। अब अगर हम इस वक्त देखें, इस टाइम को देखें, तो ये 13:41 53.99, मेरे ख्याल है काफ़ी मुश्किल होगा समझने में। ये 1:41 मिली सेकेंड्स की बात कर रहा है, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। इसका दूसरा तरीका, अगर हमें इसको PM और AM में करना होता था तो हम फिर इसको टाइम को /t की कमांड देते थे और फिर इस कमांड के बाद हमें आ जाता था 1:42 PM। सो ये दो तरीके थे टाइम को देखने में। इसमें इस तरह से टाइम देने में जो प्रॉब्लम थी सिर्फ टाइम की कमांड लिखने से, कि हम उसमें नया टाइम भी डाल सकते थे। बाज़ दफ़ा आपको ये नए टाइम की ज़रूरत नहीं होती, सो आप इस नए टाइम हर दफ़ा अगर टाइम की कमांड देंगे तो यहाँ पे एक एंटर देके और फिर वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आना पड़ता था। सो इन डॉस दिस इज़ कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, C:/ और ये ग्रेटर देन की साइन जो है, ये आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट होती थी। इस प्रॉम्प्ट पे टाइम जो भी कमांड लिखनी होती थी वो हमें टाइप करनी पड़ती थी, एंटर दबाना पड़ता था, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होती थी। तो ऑब्वियसली जो बात कर रहा था, शुरू में कंप्यूटर जो है वो यूज़ करना काफ़ी कम्बरसम था। PC आने के बाद जब ये कंप्यूटर स्पेशल लोगों से हट के आम लोगों की डेस्क पे आना शुरू हुआ, देन हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई, एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सो डॉस टाइम से आगे जब हम निकले, तो अब आप आजकल अगर देखें टाइम, अपने कंप्यूटर पे क्लिक करें तो टाइम कुछ इस तरीके से आता है कि ये कनाडा का बता रहा है कि ये इस वक्त पैसिफिक टाइम बता रहा है, मंथ और ईयर बता रहा है, डे और डेट बता रहा है, और टाइम को इस शक्ल में भी दिखा रहा है, एनालॉग जिसको हम कहते हैं, और टाइम को डिजिटल शक्ल में भी दिखा रहा है। सो ये एक अब नया टाइम का ये खास तौर पर सेटअप करने के लिए, जो हम डॉस में टाइम की कमांड देके एंटर करके आता था कि एंटर न्यू टाइम, अब यहाँ चाहें तो हम टाइम को ये आगे पीछे करके टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में अब देखें कि तो ये टाइम को एंट्री करना ही चेंज हो गया है, एंड नाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम जोन। किस टाइम जोन में है? ऑब्वियसली अगर हम अपने लिहाज से देखें तो वी आर नॉट इन US एंड कनाडा, वी आर इन पाकिस्तान। तो यहाँ हमें इसको क्लिक करना होगा और हमें पाकिस्तान लाना पड़ेगा। इसी तरह मंथ की तरफ जाना पड़ेगा, ईयर की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर हम डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग कंप्यूटर हैज चेंज्ड। अब अगर हम स्मार्टफोन पे चले जाएं तो उसमें तो अब आप तरह तरह के टाइम को डिस्प्ले के तरीके आ गए हैं, इवन ये वाला स्टाइल भी है। आप उसमें अलार्म अगर डालना चाहते हैं तो आपने रिपीट को बता सकते हैं कि रिपीट करना है, नेवर लिख दिया है, खाली साउंड करना है कि वाइब्रेट भी करना है, थोड़ी देर बाद इसको दोबारा अलार्म को चलते रहना है जब तक आप अलार्म को ऑफ ना करें, ये स्नूजिंग करनी होती है। इसी तरह आप लेबल भी कर सकते हैं कि आप इसको क्या लेबल करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप देखते जाएं तो ये स्टाइल अब बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब वी स्टार्ट विद द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डॉन नॉर्मन्स डोर एग्जाम्पल। डॉन नॉर्मन ने एक क्लासिक बुक लिखी थी, द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। उसने ये कहा था कि हम जो आम एवरीडे जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उनके डिज़ाइन को भी बड़ा स्पेशल होना चाहिए। इस बुक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इसकी भी PDF मैंने डाउनलोड कर ली है, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़ें, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े मज़े की बुक है। अब इसकी जो मेन थीम था उसके बुक का, वो ये था कि पहले ज़माने में जब कोई भी चीज़ आती है, इवन अभी भी जो चीज़ें आती हैं उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल आ जाता है। उन मैनुअल में तरह तरह से उनको इस्तेमाल करने के तरीके बताए होते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरीके से इसको ऑन करना है, किस तरह से निकालना है, कैसे इसको प्लग इन करना है अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर हम गौर करें तो हम में से कोई भी बमुश्किल उसके एक आध पेज पढ़ लेता है, वरना यूजुअली हम यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ते और हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसने जो आइडिया दिया था
वो आइडिया ये था कि थिंग्स शुड बी डिजाइन सो दैट मैनुअल्स आर नॉट नीडेड। जो चीजें हैं वो इस तरह की बने हों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ यूजेबल हो, कि किसी भी यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं हो, बस आप स्टार्ट करें और शुरू हो जाएं। अब जो उसने इस अपने टाइटल ऑफ द बुक में जो चीज दी हुई है उसी को देखने की जरूरत है कि ये जो उसने कैटल दी हुई है इसमें आपको कोई चीज प्रॉब्लम नजर आ रही है इस डिजाइन में? अगर आ रही है तो आप शेयर कर लीजिएगा, नहीं आ रही तो मैं बता दूं कि जिस जगह पे टूटी से पानी निकलना है उसी जगह पे हैंडल दिया हुआ है। नाउ इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू यूज। यूजली जो हैंडल होता है वो इस तरफ होता है ताकि हम आराम से पोर कर सकें। अगर उसी तरफ होगा तो हमें यूं करके पोर करना पड़ेगा, जो कि जाहिर बात है चीजों को गिराएगा और उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं होगा। सो ये बुक कवर पे ही उसने ये डिजाइन की फॉल्ट बता दी थी। अब डॉन नॉर्मन ने जैसे डोर की एग्जांपल दी। यूजली क्या होता है कि अगर डोर आप डॉन नॉर्मन के स्टाइल से बनाएंगे तो जहां पे पुल करना है, जहां से आपने दरवाजे को अब खींचना है, वहां पे अगर हैंडल दिया हुआ हो और जहां से आपने दरवाजे को खोलने के लिए पुश करना है वहां पे अगर हैंडल ना दिया हो तो ये नेचुरल एक्शन होगा कि जब आपको खोलना होगा तो आप पुश यहाँ पे करेंगे और जब आपको बाहर से अंदर आना होगा तो आपको पुल करना होगा, तो वहां पुल करने के लिए आपको हैंडल चाहिए। जब ये कर देंगे तो आपको पुश और पुल लिखना नहीं पड़ेगा। सो आपको जब भी खोलना होगा तो आप उसको आराम से खोल सकेंगे। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये लिखा होता है कि हैंडल भी दिया होता है और उसके बाद लिखा होता है कि पुश। अब हैंडल को पुश करने के बजाय ये एक नेचुरल, एक कुदरती रिएक्शन है कि आप जहां पे भी हैंडल होगा उसको आप खींचेंगे। सो कितनी दुकानों पे, कितनी जगहों पे आप ये करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम डॉन नॉर्मन की एडवाइस को यूजुअली नहीं मानते, अक्सर नहीं मानते। सो ये चीज होती है और पुश की जगह पे आप उसको पुल कर रहे होते हैं और दरवाजा नहीं खुल रहा होता, अगर वो दरवाजा वहां से उन्होंने डिजाइन ऐसा किया हो कि उस तरफ से लॉक हो। सो जो लोग भी डॉन नॉर्मन की इस एग्जाम्पल को नहीं फॉलो करते वो ये प्रॉब्लम करते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में भी हम यही चाहते हैं कि ऐसी इंटरेक्शन हो कि जो काम करना हो वो नेचुरल हो, आपको ये ना पता चले कि आपको यूं करना है तब जाके आप उसको करें। इंस्ट्रक्शंस नहीं आनी चाहिए कि प्रेस दिस, जैसे डॉस की आपको एग्जांपल दी, टाइम लिख के जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे टाइम नहीं डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद फिर वो एंटर न्यू टाइम पे आके रुका रहेगा, फिर आप एंटर जब तक प्रेस नहीं करेंगे वो डॉस प्रॉम्प्ट पे नहीं आता था। सो ये एक बड़ी कम्बरसम चीज हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अब आप रुक रहे हैं, नई इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं। इवन आज भी हमें जब काम कर लेते हैं, इवन अगर हम सेटअप्स वगैरह कर रहे हों तो नेक्स्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट को जब तक आप क्लिक नहीं करते या नेक्स्ट पे जाके एंटर नहीं करते आप नेक्स्ट की तरफ जाते नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसे मेरी अपनी स्लाइड है, जब तक मैं इस पे जाके क्लिक नहीं करूंगा ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगी। नाउ हम विजन पे आ गए। देयर आर 2 स्टेजेस इन विजन, फिजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। क्या चीज है? अब हमें जब हम ह्यूमन फैक्टर की तरफ थोड़ा सा मूव कर गए हैं, विजन में क्या होगा कि हमारे पास 2 चीजें हैं। एक ये कि हम आंख से देखते हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं वो चीज स्टिमुलस है, वो चीज वो फैक्टर है जो आपको किसी एक्शन, किसी काम के लिए मजबूर करती है। जैसे आप अपने दोस्त को जब आप भीड़ में देखते हैं तो आप एकदम चौंकते हैं, अचानक अगर बहुत दिनों बाद किसी दोस्त को देखें। एंड देन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आप उसकी तस्वीर, उसकी जो इमेज आपके आंख में आई होती है उसको आप प्रोसेस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि यार ये तो मेरा दोस्त है। और फिर अगर आपने उससे जाके मिलना है तो आप तेजी से जाते हैं, उसको मिलते हैं, या आप उसको आवाज मारते हैं कि, या आप उसको सलाम करते हैं। सो दीज आर द एस्पेक्ट जो आपकी प्रोसेसिंग करती है, फिर इंटरप्रिटेशन करती है
स्टिमुलस की। सो वो जो दोस्त को देखना है या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को देखना है, वो आपकी पहले आपने उसको देखा, फिर स्टिमुलस को उसको प्रोसेस किया, अगर आपको उसको देख के मिलना है तो फिर आपने एक्शन परफॉर्म किया और आप गए और आपने जाके उससे मुसाफा किया या उसको आवाज लगाई। सो ये स्टेजेस हैं विजन की। अब आई की फिजिकल रिसेप्शन है क्या, आंख देखती कैसे। जो हमारा ये आंख की पुतली है, इसमें हम मैकेनिज्म होता है जो लाइट के साथ हम देख सकते हैं। किसी भी चीज को देखने का तरीका ये होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को पहले लाइट पड़ती है तो फिर हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है, इसीलिए हमारी आंख अंधेरे में नहीं देख पाती। सो लाइट की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे पहले लाइट की इम्पॉर्टेंस है कि लाइट के बगैर हम किसी चीज को नहीं देख सकते। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस भी चीज को हम देख रहे हैं, उस पर लाइट पड़नी जरूरी है। जब वो लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से और वो हमारे आंख में रेटिना में आती है पुतली के जरिए, और रेटिना पे जो इमेज आती है वो अपसाइड डाउन आती है, उल्टी आती है। अगर कैमरे का प्रोसेस देखें तो कैमरे का प्रोसेस एग्जैक्टली यही है। सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आंख के सामने, ये उसको देखता है, ये इमेज को आंख रेटिना पे इस जगह पे उल्टे तरीके से हमारे इमेज को देता है। फिर दिमाग जो है उसको सीधा करता है। फिर रेटिना कंटेन रॉड्स फॉर लो लाइट विजन्स एंड कोन्स फॉर कलर विजन। सो रेटिना जो है वो लो लाइट विजन को और उसके अंदर जो कोन्स लगी होती हैं वो कलर विजन्स को डिस्टिंग्विश करती हैं। और गैंग्लियन सेल्स जो दिमाग में होता है वो पैटर्न को डिटेक्ट करता है और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है अगर मूव कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा जो हमारा फोटो कैमरा है वो विजुअल को देखता है, लेकिन वीडियो कैमरा मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। ब्रेन हमारा एक तरह से वीडियो कैमरा है जो कि सिर्फ फोटो ही नहीं देख रहा, बल्कि वो पीछे जो मूवमेंट हो रही है उसको भी डिटेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो ये होता है कि अगर लो लाइट होती है तो बाज़ दफ़ा आंखें फैलती हैं, अगर तेज़ लाइटें होती हैं तो आंखें सिकुड़ जाती हैं, जैसे सूरज के सामने जब हम जाते हैं तो आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। तो ये मूवमेंट उसको खुद ब खुद कोन्स को एडजस्ट कर रही होती है ताकि हमारा फोकस बेहतर हो सके। और कलर विजन्स, क्योंकि हम कलर में देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में खाली नहीं देखते, सो कलर विजन्स भी होता है। और ये आगे चल के भी शायद पता चले, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बताता रहूँ। रेटिना कंटेन्स रॉड्स फॉर लो लाइट विजन एंड कोन्स फॉर कलर विजन। रेटिना के अंदर रॉड्स होती हैं और कोन्स होती हैं। रॉड्स जो होती हैं वो लो लाइट में फैल जाती हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को सही तरह से देखें। अगर लाइट तेज पड़ रही हो तो वो सिकुड़ जाती हैं, और ताकि हम उसको आराम से ऑब्जर्व कर सकें क्या चीज़ है। इसी तरह कोन्स रेटिना के अंदर होती हैं जो कलर विजन्स को भी बता रही होती हैं, और कोई अगर कोन खराब हो तो हम उस कलर के ब्लाइंड होते हैं। यूजुअली जो मेल्स हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जो किसी एक ख़ास कलर या एक से ज़्यादा कलर को ना देखते हों। सो ये रेटिना के अंदर होता है। गैंग्लियंस में सेल्स में जो ब्रेन के अंदर होते हैं वो पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं और वो मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। सो गैंग्लियन सेल्स जो हैं वो हमारी एक तरह से पैटर्न के किस पैटर्न को, जैसे अगर हम इस इमेज को लेके चलें तो ट्री का पैटर्न है, तो ये बता रहा है ट्री है। अब ट्री क्योंकि मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये किसी दोस्त को हम देख रहे हैं तो हम उसकी न सिर्फ उसको पहचान रहे हैं कि यार ये दोस्त है, और अगर वो जा रहा है और हमें नज़र आ रहा है यार वो हमारे पास से जा रहा है, तो हमें वो मूवमेंट उसकी नज़र आएगी और हम फिर रिएक्ट करेंगे और उसको तेज़ी से उसके पास जाके उससे मिलेंगे। इंटरप्रेटिंग द सिग्नल, अब ये आंखों में सिग्नल को हम कैसे देखते हैं। साइज एंड डेप्थ, विजुअल एंगल इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइज। हमें उसके विजुअल एंगल से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना गहरा है, कितनी दूर है, और हम उस लिहाज से अपने आप को
देखते हैं कि ये कितनी दूर है और किस तरीके से करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो जैसे क्रिकेट में कैच पकड़ना होता है, ख़ासतौर पे जो ऊंचा कैच होता है, तो आप उस बॉल को देखते हुए भागते हैं और आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये कितनी हाइट पे जा रहा है, तो बॉल कहाँ आएगी। जब आपकी ये पूरी कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं साइज़ की और डेप्थ की, अगर ये ठीक होती है और आपने हाथों को सही पकड़ किया हुआ होता है, ढीला रखा होता है, तो आप कैच पकड़ लेते हैं। अगर नहीं, आपकी विजुअल सबसे पहले अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको सही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप कैच की जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो ये साइज एंड डेप्थ है, रिलेट्स टू साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम आई। विजुअल एक्यूटी इज एबिलिटी टू परसीव डिटेल। अब जो कितना एक्यूट ये हमारा विजुअल सिस्टम है, ये ताकि उसकी डिटेल में कर लेता है। ये जो एबिलिटी होती है थोड़ी सी लिमिटेड होती है, हर चीज़ की डिटेल हम बाज़ दफ़ा नहीं देख पाते। सो ये हम उसमें देख लेते हैं। फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स परसीव एज कांस्टेंट साइज। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट फेमिलियर हों उसको हम कांस्टेंट साइज में ही देख रहे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन विजुअल एंगल व्हेन फार अवे। जैसे मैंने अभी क्रिकेट के बॉल की एग्जांपल दी, तो जब अगर आप दूर फील्डिंग कर रहे हैं तो बॉल आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन जब बॉल हिट लगी है और वो आपकी तरफ आ रही है, तो आप जो परसीव कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो बॉल का वही साइज है जो एक्चुअल साइज है, क्योंकि आप बॉल से फेमिलियर हैं, आपने बॉल को बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता है कि बॉल का साइज वही रहेगा। हालांकि उस वक्त आपको नज़र बॉल जो है वो छोटी आ रही होती है, और जैसे जैसे जब बॉल करीब आती है वो अपने साइज को बढ़ाती जाती है, और जब वो बिल्कुल करीब आ जाती है तो वो साइज होता है। लेकिन ये फेमिलियरिटी जो है वो परसीव आपको करा देती है कि ये यही है। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर आपकी कोई ऐसी फेमिलियर चीज़ नहीं है तो आप दूर से कुछ और उसको समझ रहे होते हैं, और फिर वो जैसे जैसे करीब आती है आपका आइडिया चेंज हो रहा होता है कि अच्छा ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, और इवेंचुअली फिर आप उसको पहचानते हैं कि ये क्या है। जैसे कि अगर जहाज़ की आवाज़ नहीं आ रही और आपको लग रहा है तो शुरू में वो आपको बर्ड नज़र आएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ नज़र आएगा, और जैसे जैसे करीब आ जाएगा, और अगर आप जहाज़ के शौकीन हैं तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा जहाज़ है। क्यूज लाइक ओवरलैपिंग हेल्प परसेप्शन ऑफ साइज एंड डेप्थ। सो अगर आप चीज़ों की ओवरलैपिंग में चीज़ें आती रहें, तभी भी अगर उसकी क्यू बनती रहे तो भी वो जो है वो आपको उसके साइज और डेप्थ को पहचानने में आसानी करती है। सो आप उससे भी थोड़ा सा साइज को समझ सकते हैं। फिर ब्राइटनेस आ जाती है, सब्जेक्टिव रिएक्शन टू लेवल्स ऑफ लाइट। अब ब्राइटनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लाइट कम होगी तो आपकी जो रॉड्स हैं वो थोड़ा सा फैलेंगी और आप उसको ज़रा गौर से देखेंगे, और अगर लाइट तेज पड़ रही होगी तो आंखें, जिसे कहते हैं चुंधियाना, कि आंखें छोटी हो जाती हैं और आप उसको फिर भी आप देख रहे होते हैं। सो ये आपका डिपेंडिंग ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका रिएक्शन जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, आप उसी लिहाज से करते हैं। अफेक्टेड बाय ल्यूमिनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो कि जिनकी रिफ्लेक्शन बहुत तेज होती है, जैसे कि शीशे पे अगर आपने अक्सर किया होगा बचपन में, अभी भी करते हैं कि आपके पास अगर आईना हो तो सूरज की रोशनी अपने दोस्त की आंख पे मारते हैं और वो फौरन ही अपनी आंख बचा रहा होता है। सो ये वो जो आईने की रिफ्लेक्शन है वो उसकी ल्यूमिनेस ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट जी सूरज आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ उस लाइट से ही आपको हो रहा होता है। अगर आजकल के स्मार्टफोन की तरफ जाएं तो बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो दिन की रोशनी पे उनको आपको टेक्स्ट अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो वो आपको नज़र ही नहीं आता, आपको अपने फ़ोन के ऊपर हाथ करना पड़ता है ताकि आपको शेड आए और उस शेड में आके आप उसको देख सकें। सो ये ल्यूमिनेस जो उन फ़ोन की स्क्रीन्स पे दी गई है वो अच्छी नहीं है, अगर वो ल्यूमिनेस को थोड़ा सा डल कर दें तो वो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह ब्राइटनेस को हम मेजर कर सकते हैं, डिफरेंस उसका नोटिसेबल होता है।
सो विजुअल एक्विटी इंक्रीजेज विद ल्यूमिनेस, जैसे जैसे आपकी ल्यूमिनेस बढ़ती जाएगी विजुअल की एक्यूटनेस जो है आपकी बढ़ होती जाएगी। इसी तरह अगर फ्लिकरिंग हो रही हो तब भी आपकी आंखें जो हैं वो हिलती जाती हैं और आप उसको देखते हैं कि आप परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये क्यों फ्लिकर कर रहा है। कलर कैसे बनता है? कलर मेड ऑफ ह्यू, इंटेंसिटी, सैचुरेशन, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे आपने उनको कंबाइन किया है और आप उस तरीके से अपने इंटेंसिटी और सैचुरेशन को देख रहे हैं। कोन्स मैंने पहले भी बताया, सेंसिटिव टू कलर एंड वेवलेंथ होती है। ब्लू की जो ल्यूमिनेस है, एक्यूटी है, उसकी जो एक्यूटनेस है वो लोएस्ट है, तो ब्लू की बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 8% मेल्स और 1% फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड। तो मर्द जो है वो ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं, फीमेल नहीं होती। ऑब्वियस सी रीज़न है, फीमेल को अपने कपड़े सही तरह से पहनने होते हैं, कलर मैचिंग करनी होती है, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि उनमें कलर ब्लाइंडनेस सबसे कम होती है, सो दैट वो अपने कलर्स को सही तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें। मेल्स को कलर की पहचान भी कम होती है, ब्लाइंडनेस तो अपनी जगह है ही है ज़्यादा, लेकिन कलर की पहचान भी बहुत कम होती है। शेड्स ऑफ ग्रेज जो हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। फिर विजुअल सिस्टम कंपनसेट फॉर मूवमेंट चेंजेस इन ल्यूमिनेस। विजुअल सिस्टम जो है अपने आप को खुद ठीक करता रहता है, चेंज करता रहता है, जैसे जैसे ल्यूमिनेस बढ़ती या कम होती है या जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। अगर हम को, जैसे मैंने मिसाल दी है कि जहाज़ की, कि अगर दूर से आपको परिंदा लग रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते जाते हैं कि यार ये तो फ्लो कर रहा है, बहुत ऊंचा है, इतनी ऊंच पर कोई परिंदा नहीं हो सकता। सो यू रियलाइज, और फिर अपनी जो आपकी विजन की एम्बिग्यूटी है उसको आप ठीक करते जाते हैं। या फॉर दैट मैटर आपने अगर अपने किसी दोस्त को बड़े अरसे बाद देखा है तो आप पहले आपको एम्बिग्यूअस लग रहा होता है, फिर आपको उसके कुछ फीचर्स आपके जहन में आ रहे होते हैं और आप उससे पहचानते जाते हैं कि यार अच्छा ये तो वही है, और फिर आप उस तरीके से उसकी जो एम्बिग्यूटी होती है कि यार ये वो है या नहीं है, आप थोड़ी सी देर बाद अंदाज़ा लगा के और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन समटाइम्स अकर ड्यू टू ओवर कंपनसेशन। कुछ दफ़ा कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। मैं भी कुछ छोटी सी मिसाल भी आगे दूंगा। जो आपकी एक्चुअली इल्यूजन्स हैं, आप समझ रहे हैं कि ऐसा है, आप उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये फीलिंग आ रही है। सो ओवर कंपनसेशन जब कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे आप गौर कर रहे होते हैं, तो आपको बाज़ दफ़ा ऑप्टिकल इल्यूजन्स होती हैं। ये हमारे यहाँ जो साया, भूत प्रीत वगैरह भी है, ये हमने क्योंकि इतना बचपन से डराया हुआ होता है, तो हमें हर चीज़ में ये ओवर कंपनसेशन होती है, और कभी कभी हमें ये इल्यूजन भी होती है कि अच्छा वो कोई गुजरा था। सो दीज आर समटाइम्स ऑप्टिकल इल्यूजन एज वेल। अब आपके सामने ये दोनों मिसालें हैं। ये पोंजो इल्यूजन कहलाती है, रेल की पटरी है, ये पैरेलल नजर आ रही है या थोड़े आगे जाके ये आपको ये फीलिंग हो रही है कि ये मिल रही है। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। अगर आप रेल की पटरी को एक्चुअली भी जाके देखें तो थोड़ी सी आगे जाके आपको ये लगेगा कि वो मिल रही हैं, करीब होती जा रही हैं, हालांकि ये आपकी आंखों का इल्यूजन है, जिसे कहते हैं आंखों का धोखा है, और कुछ नहीं है। ये पैरेलल ही चल रही है, पैरेलल ना चलें तो ट्रेन ऑब्वियसली पटरी से उतर जाएगी। सिमिलरली मल्टी लेयर इल्यूजन, इसमें अगर ये देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर हैं, या ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। जस्ट बिकॉज ये आपको ये इल्यूजन ये हो रहा है कि इसमें ये इस तरीके से बना हुआ है और इसमें ये अंदर की तरफ गई हुई है लाइन, इसमें ये बाहर की तरफ टच कर रही है, तो ये फीलिंग आ रही है कि ये बड़ी है और ये लाइन छोटी है, जबकि ये एग्जैक्टली सेम लाइन है। सो इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। रीडिंग, अब रीडिंग में सेवरल स्टेजेस है। विजुअल पैटर्न परसीव्ड, सबसे पहले हम जो पैटर्न है, जो कुछ भी हम है उसको परसीव कर लेते हैं।
डिकोडेड यूजिंग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा परसीव किया हुआ है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हमें क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन हमारी आंखों में है, हमारे जहन में है, सो हम उस अपने जहन की यूज करते हुए ये डिकोड कर लेंगे और हम ये पढ़ लेंगे कि ये विजुअल पैटर्न परसीव्ड लिखा हुआ है। और फिर यू इंटरप्रेटेड यूजिंग नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड पैराग्मेटिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि हम जो भी पैटर्न्स हैं वो हमारे, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज है, इंग्लिश की ग्रामर को हम जानते हैं, उसके अलावा उसके सिंटैक्स को सबसे पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमने यूं पढ़ना है, यूं नहीं पढ़ना, और फिर सिमेंटिक्स, उसके रूल्स को पता है, उसके जुमलों का हमें पता है, तो फिर हम इसको अपने इन जो स्लाइड्स इंग्लिश में लिखी गई हैं उनको पढ़ सकते हैं। फिर रीडिंग इन्वॉल्व सैकेड्स एंड फिक्सेशन। अब सैकेड्स एंड फिक्सेशन का क्या मतलब है? सैकेड्स का ये मतलब है कि ये जो दोनों आंखों की पुतलियां हैं ये एक साथ घूम रही हैं, ये मैंने एनिमेशन में भी इसमें दिखाया है, इसीलिए हम इसको सही पढ़ सकते हैं। अगर ये मूवमेंट खुदा ना खास्ता एक आंख इधर जा रही है और दूसरी आंख दूसरी तरफ जा रही हो, तो हमें ये जो लिखा हुआ है इस पे हमारी फिक्सेशन नहीं होगी और हम इसको इंटरप्रेट पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है, अगर पढ़ भी लिया तो फिर हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। सो ये हमारी सकेशन है। परसेप्शन अकर्स ड्यूरिंग फिक्सेशन। सो जब हम फिक्स हो रहे होते हैं तभी हमारी परसेप्शन आ रही होती है, हम पहले से परसीव कर रहे होते हैं कि जुमला क्या है। बहुत सारा ऐसा होता है कि हम वर्ड को देख रहे होते हैं लेकिन हम उसको पढ़ने से पहले ही परसीव कर रहे होते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और अगर वो गलत भी लिखा हुआ हो तो हमारी परसेप्शन उसको सही पढ़ लेती है। वर्ड शेप इज इंपॉर्टेंट टू रिकग्निशन। इसी तरह वर्ड शेप जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है उसको रिकग्नाइज करने के लिए। अब हमारे यहाँ जो कैलीग्राफी की जाती है, कम से कम मैं कहूँगा उर्दू कैलीग्राफी में या अरेबिक कैलीग्राफी में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उनको परसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या लिखा हुआ है। काफ़ी टाइम लगता है परसीव करने में कि अच्छा ये लिखा हुआ होगा। फिर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्यूटर के लिहाज से, नेगेटिव कंट्रास्ट इम्प्रूव्स रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन। इस वक्त जो मैंने भी लिखा हुआ है ये नेगेटिव कंट्रास्ट है। नेगेटिव कंट्रास्ट इस तरह से कि वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक में लिखा हुआ है, जबकि यूजुअली जो पॉजिटिव है वो ये है कि आप ब्लैक के ऊपर ही अगर आप लिखेंगे वाइट से, लेकिन उसको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। सो कंप्यूटर ने हमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेके गया है रीडिंग के लिहाज से कि नेगेटिव कंट्रास्ट लेके चलते हैं, वाइट बैकग्राउंड में हम ब्लैक से लिखते हैं। सो ह्यूमन पर्सपेक्टिव में जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो हियरिंग आ जाती है। हियरिंग में हम ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स। ये जो कुछ हमें करती है ये बाज़ दफ़ा हम हेयरिंग के ज़रिए डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, और बाज़ दफ़ा आवाज़ की पहचान से हमें यह हो जाता है कि किस चीज़ की आवाज़ है। दोस्तों की आवाज़ भी हम अपनी रिकग्नाइज कर लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस दोस्त की आवाज़ है। फिर इसमें कुछ नहीं है, आवाज़ से हम ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, ख़ासतौर पे अम्मी अब्बा की अगर आवाज़ हो के गुस्से में है कि प्यार से बुला रहे हैं, नॉर्मल मूड है, तो हम मूड को भी बाज़ दफ़ा जज कर लेते हैं सिर्फ हियरिंग से ही। इसका फिज़िकल एपरेटस क्या क्या है? आउटर एयर होता है, ये जो हमारा कान है ये आउटर एयर है। प्रोटेक्ट्स इनर एंड एम्पलीफाई साउंड। ये कान का जो स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया है इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरे ये खुद ही नेचुरल एम्पलीफायर है। जब हम आवाज़ सुनते हैं तो ये हमें एम्पलीफाई करता है। फिर ये जो मिडल का स्ट्रक्चर है ये ट्रांसमिट साउंड वेव्स एज वाइब्रेशंस टू इनर एयर। सो ये यहाँ से हमारा जो एयर ड्रम है ये जब जो साउंड सुन लेता है वो वाइब्रेशन की शक्ल में अंदर की तरफ हमारी भेजता है। फिर इनर एयर में जो है वो केमिकल ट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड एंड कॉज इम्पल्सेस इन ऑडिटरी नर्व। सो केमिकल इम्पल्सेस रिलीज होते हैं और फिर वो रिलीज होके ऑडिटरी नर्व में जाते हैं
और वो उसको साउंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो वो साउंड एनर्जी वेव एनर्जी में ट्रांसलेट हो जाती है। वेव एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करता है मुंह, और फिर कान जो है वो वेव एनर्जी लेता है और वेव्स को एम्पलीफाई करके अंदर भेजता है ड्रम्स में। फिर वाइब्रेशंस जो हैं वो वेव्स जो हैं वो केमिकल ट्रांसमीटर्स बनती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जो है उस आवाज़ को ट्रांसमिट दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो आवाज़ मुंह से निकलती है, हवा में जाती है, वेव लेंथ वेव की फॉर्म में जाती है, फिर कान सुनता है और कान उसको ले लेता है। साउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पिच होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की पिच बहुत हाई होती है जो कानों को इरिटेट करती है। तो कुछ लोगों की आवाज़ें जो हैं वो आपको इसलिए इरिटेट करती हैं या आप उससे परेशान हो रहे होते हैं कि उसमें साउंड फ्रीक्वेंसी उसकी बाज़ दफ़ा ज़्यादा होती है। कुछ लोग लाउड होते हैं, उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, कुछ ऊंचा बोलते हैं, या गुस्से में जब आप बोलते हैं तो आप उसकी लाउडनेस भी बढ़ा लेते हैं। फिर टेम्ब्रे क्या है? टाइप और क्वालिटी, कि आपने लाइट म्यूज़िक, ख़ासतौर पे अगर हम म्यूज़िक में देखें कि टोन उसकी कि स्मूथ वाली टोन है या चीखने वाली टोन है, या जैसे हम अगर म्यूज़िक में कहते हैं कि सूथिंग साउंड है, तो बहुत सारी ऐसे म्यूज़िक हैं जो सूथिंग होते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नर्व्स पे छा रहे होते हैं, जो आजकल के गाने वगैरह चल रहे हैं, पॉप म्यूज़िक वगैरह, रैप, ये जो है सूथिंग नहीं है, इससे आप एनर्जाइज हो रहे होते हैं। लेकिन पहले ज़माने में कुछ सूथिंग साउंड गाने भी होते थे, सूथिंग म्यूज़िक्स भी होती थी। अभी भी रिलैक्सेशन के लिए कुछ रिलैक्सेशन म्यूज़िक्स हैं जो आपको सूथ करते हैं, जो आपको ठहराव ला देते हैं आपके उसमें। अब ह्यूमन कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज। जो हमारे कान हैं उनकी सुनने की जो सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज के दरमियान रखी है। इसका क्या मतलब है कि लेस देन 20 हर्ट्ज की आवाज़ भी हमें नहीं आएगी, और 15 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ऊंची आवाज़ अगर उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होगी तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। जो हमारी जो हमारे कान हैं वो हायर फ्रीक्वेंसीज में तो उनकी डिस्टिंग्विश करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लो फ्रीक्वेंसीज में कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत कर भी जाएं, लेकिन हाई में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर ऑडिटरी सिस्टम्स जो हैं वो फिल्टर भी करते हैं साउंड्स को। ये कैन अटेंड टू साउंड्स ओवर बैकग्राउंड नॉइज। हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम है, ये जो पूरा अल्लाह ताला ने कान का सिस्टम बनाया हुआ है, सुनने का पूरा निज़ाम जो बनाया हुआ है, दैट कैन एक्चुअली गो एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज। और इसकी एग्जांपल जो है वो पार्टीज़ में होगी कि बहुत सा अगर म्यूज़िक चल रहा है शादी ब्याह वगैरह में, लेकिन कोई अगर आपको आवाज़ देता है तो उस सारे म्यूज़िक में भी आप उस आवाज़ को रिकग्नाइज कर लेते हैं और आपको ये ख्याल आ जाता है कि यार कोई मुझे शायद आवाज़ दे रहा है, एंड यू ट्राई टू लुक के कौन देख रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है। सो ये जो फिनोमेना है, ये वंस अगेन फिल्टर्स एक तरह अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं कि हम ख़ास तौर पर वो चीज़ सुन लेते हैं विद बैकग्राउंड नॉइज एज वेल। नाउ जो तीसरा एलिमेंट है ह्यूमन में वो है टच या हैप्टिक। टच में हम क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट फीडबैक अबाउट इन्वायरमेंट। अगर हम देखें कि हम सबसे पहले तो ठंडा और गर्म कोई अगर मिसाल लेके चलें, सो हमारे अंदर कुछ थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। सो हमको ये इन्वायरमेंट के बारे में कुछ फीडबैक दे देता है। मे बी की सेंस फॉर समवन हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। और ऑब्वियसली ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट है जिसको मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लाइंड या अंधा, ये थोड़े से बुरे अल्फाज समझे जाते हैं। जो अंग्रेज़ी में वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन अब लोग यूज़ करने लगे हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड है। अंधे का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो है वो जिसको दिखाई नहीं देता,
जो नाबीना हो जाता है। सो नाबीना होना एक एस्पेक्ट है, बट अगर हम गौर करें तो कुरान में अंधे को जिस तरीके से दिया हुआ है वो सिर्फ दिखाई देने के हवाले से भी नहीं दिया हुआ, अकल के अंधे भी कहा हुआ है कि इनके अकल नहीं है। सो ये वर्ड डेरोगेटरी है, अल्लाह ताला ने भी इसीलिए यूज़ किया है, तो इसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल ना करें। सो हम ये कह सकते हैं जिनकी बिनाई में कोई प्रॉब्लम है या जिनकी बिनाई कमज़ोर है, उनके लिए तो ये सेंस, टचिंग की सेंस बहुत अच्छी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अल्लाह ताला इसमें इजाफा भी कर देता है। जिनको ख़ास तौर पे नज़र नहीं आता उनमें ये सेंस और उभार देता है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें बेसिकली अब तक जो हम अंदाज़ा लगाया है वो 3 रिसेप्टर्स का लगाया हुआ है। रिसेप्टर्स क्या हैं? जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को जिनसे मिल जाती है। एक थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो हीट और कोल्ड, गर्म और ठंडे का हमें बताते हैं, ये हमारे थर्मो रिसेप्टर्स हैं, और ये पूरे जिस्म में गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में लगे आपको फ़ौरन एहसास हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा थर्मो रिसेप्टर है वो हमारे नाक और हमारे पाँव और सर पे है। यहाँ पे हमें ठंड सबसे ज़्यादा या गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ख़ासतौर पे ठंड के लिहाज से। नाक, सर और पाँव इन्हीं को इसीलिए सेफ रखने को कहा जाता है कि यहाँ में हो जाता है। फिर नोसिसेप्टर्स हैं जो कि पेन को, अगर कोई आपको चुभा रहा है, नोच रहा है, तो आपको ये पेन, नोसिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में जगह जगह दिए हुए, ये हमें बता देते हैं कि पेन हो रही है। फिर मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को बता देते हैं। अगर कोई हाथ मरोड़ रहा है तो मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे बता रहे हैं कि यार ये वाला पेन बर्दाश्त हो सकता है। और फिर जब वो पेन अनबेरेबल हो जाता है तो हम अपने दोस्त, मजाक में भी अपने दोस्तों को कहते हैं यार बस करो, हाथ टूट जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई हो रही हो तो उसको बताना नहीं चाहिए वरना वो तोड़ ही देगा। सो ये तीनों किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो हमारे अल्लाह ताला ने जिस्म में दिए हुए, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स। सम एरियाज मोर सेंसिटिव देन अदर्स, जैसे मैंने बात की थी कि फिंगर्स हैं, कोल्ड के लिहाज से मैंने बताया कि नाक, सर और पाँव हैं। फिर किनेस्थेसिस है। किनेस्थेसिस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं बहुत ऊपर बैठ जाऊँ तो मेरे टांग हिलती रहेगी और थोड़ी देर बाद मुझे टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा और मेरे लिए ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सीट पे बिल्कुल इसको नीचे कर लूँ तो घुटने ज़्यादा बेंड हो जाएंगे और ये भी मुझे थोड़ी देर बाद दर्द करने लगेगी। सो मुझे अपनी परफॉर्मेंस, यहाँ 1.5 घंटे का लेक्चर देना है, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अपने किनेस्थेसिस के मुताबिक, अपनी बॉडी पोजीशन के मुताबिक इस सीट को एडजस्ट करना होगा, और इसको एडजस्ट करके मैं अपनी पोजीशन को सही, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूँगा। तो मेरे लिए किनेस्थेसिस ही ये मुझे बता रहा है कि हाँ यार अब ये बिल्कुल ठीक है और मैं अब जो बैठा हुआ हूँ बड़े सुकून से बैठा हुआ हूँ। फिर मूवमेंट है। मूवमेंट क्या है कि टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, रिएक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम। जैसे मैंने दोस्त की मिसाल दी थी, फिर वहाँ पे दूंगा कि अब आपको अपना एक दोस्त नज़र आया है, जितनी देर में आप उसको पहचान रहे हैं, अगर वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है, जैसे गाड़ी में बैठा हुआ है या वो तेज़ी से जा रहा है, तो आपका रिएक्शन टाइम प्लस आपका मूवमेंट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसको कैच करने के लिए। कैच पे मुझे याद आया कि जो क्रिकेट की मिसाल दी है कि आपने शॉट देखा है, अब आपका रिएक्शन टाइम, अब आप ये रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी जहन ने कैलकुलेट करना है कि यार ये कैच, ये बॉल कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे ये गिर जाएगी। अब आपका पहले तो रिएक्शन टाइम उस बॉल की पूरी हाइट, डेप्थ और उसकी पूरी कैलकुलेट करने का, प्लस आपका मूवमेंट टाइम। अगर आप खुद स्लो हैं तो आप उस बॉल तक नहीं पहुंच सकेंगे, चौका या छक्का हो जाएगा या कैच ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप उस पर रिएक्ट करते हुए टाइमली पहुंच जाएंगे और आप उस बॉल को कैच कर लेंगे। खासतौर पे जो सिलिमिड ऑन, सिलिमिड ऑफ पे खड़े होते हैं, उनके पास ये रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम बड़ा कम होता है। उनको फ़ौरन रिएक्ट और फ़ौरन मूव करना होता है, वरना वो तो कैच फ़ौरन ही निकल जाता है। सो ये टाइम टेकिंग टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस जो है, ये मूवमेंट है।
मूवमेंट टाइम डिपेंडेंट ऑन एज फिटनेस। अब ये जो टाइम है ये ऑब्वियसली एज और फिटनेस पे चाहिए होता है। फिर खिलाड़ी की मिसाल दूंगा कि इसीलिए हम ये कहते हैं कि यंगस्टर्स को रखें कि उनका मूवमेंट टाइम थोड़ा सा तेज होता है। बट अगर हम बैटिंग के लिहाज से देखें तो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ पे मूवमेंट स्लो है और वहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, सो वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव, बट ये मूवमेंट टाइम जो डिपेंडेंट होता है वो एज और फिटनेस पे होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिट नहीं है, तो आपकी मूवमेंट हैम्पर होंगी, स्लो होंगी। अब रिएक्शन टाइम जो डिपेंडेंट होता है वो स्टिमुलस पे भी होता है। स्टिमुलस हमने डिस्कस अभी पहले भी किया है कि विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी भी हो सकते हैं और पेन के लिहाज से भी हो सकते हैं। सो विजुअल का जो स्टिमुलस है वो हमने जो कैलकुलेट किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिली सेकेंड्स के तकरीबन होता है। इसी तरह जो ऑडिटरी होता है वो 150 मिली सेकेंड या उससे कम होता है, और जो पेन का है वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो 700 मिली सेकेंड्स का होता है। इसीलिए पेन बाज़ दफ़ा आपको चीज़ हो जाती है और फिर उसके बाद उसका पेन होता है। ख़ास तौर पर जब मच्छर काट के चला जाता है तभी हमें पता चलता है कि मच्छर ने काटा है। अगर ये फ़ौरन रिएक्शन हो रहा हो तो शायद हम मच्छर के बैठते साथ ही उसको मार दें। Increasing reaction time decreases accuracy in the unskilled operator but not in the skilled operator. जो रिएक्शन टाइम को अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं तो ये जो है अनस्किल्ड ऑपरेटर में तो ये जो एक्यूरेसी है उसको ये और कम कर देगा, लेकिन स्किल्ड ऑपरेटर को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम जैसे ये वाला मूवमेंट का टाइम है, अगर ये हम इसको इंक्रीज कर दें क्लिक का टाइम पे, जब मैं ये लेफ्ट इसके प्रेस करता हूं तो ये क्लिक हो जाता है माउस। अगर मैं ये इसको इंक्रीज कर दूंगा टाइम को, अगर मैं इसको रेगुलर यूज कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक पहली दफा बंदा यूज कर रहा है जिसको माउस यूज करना नहीं आता, उसको क्लिक में अगर टाइम देर तक दबाना है तो वो हो सकता है कि देर तक ना दबा पाए और चीज उससे ना हो। इसको ये कह रहा है कि डिक्रीजेस एक्यूरेसी इन अनस्किल्ड ऑपरेटर बट नॉट इन द स्किल्ड ऑपरेटर। फिर मूवमेंट को फिट्स लॉ से भी डिस्क्राइब किया है हुआ है, और उसने फिट्स लॉ क्या कहता है कि मूवमेंट इज इक्वल टू a प्लस बी log of 2 ओवर इनटू डिस्टेंस ओवर साइज ऑफ द टारगेट। सो जैसे जैसे टारगेट बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस एज स्मॉल होता जाएगा, मूवमेंट टाइम जो है वो कम होता जाएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल लें तो अगर हमें किसी चीज़ का निशाना लेना है और वो बड़ी चीज़ है और डिस्टेंस भी कम है, तो हम बड़ी तेज़ी से निशाना लेके और उस चीज़ के ऊपर मार देंगे। अगर हम हाथ से निशाना ले रहे हैं, बॉल हमारे हाथ में है और हमें बड़ी सी चीज़ का निशाना लेना है, लेकिन जैसे 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 क्रिकेट में ही है कि जो विकेट के नज़दीक खड़ा हुआ है उसके लिए निशाना लेके विकेट को मारना ज़्यादा आसान है, लेकिन जो आउटफील्ड में बच्चा फील्डर खड़ा हुआ है, जो आउटफील्ड में फील्डर खड़ा हुआ है, उसके लिए निशाना लेके मारना शायद मुश्किल होता जाता है। सो ये फिट्स लॉ है। अगर हम माउस की एग्जांपल लें और अपने क्लिक की एग्जांपल लें तो बड़ी चीज़ को क्लिक करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर बहुत बारीक सी किसी चीज़ को क्लिक करना हो तो वो एट टाइम्स हमारे लिए मुश्किल हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं तो अगर हमें किसी नुक्ते पे कोई कलर को चेंज करना होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम उसको जूम कर लेते हैं। जूम इन करके हम उस पॉइंट पे जाके उसको ठीक करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, बजाय उसको कि उसको नेचुरल साइज पे ही रह के या स्मॉल साइज पे ही रख के हम उसको ठीक करने की कोशिश करें तो हमारी एक्यूरेसी खराब होने के चांसेस होते हैं। अब फिट्स लॉ की ये तो हमने बात कर ली, लेकिन ये एक्चुअली क्या चीज़ है? फिट्स लॉ ये कहता है कि जो हमारे खासतौर पे वेब डिज़ाइनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमने
डॉन नॉर्मन की बात की थी कि हैंडल को उसी जगह नहीं होना चाहिए जिस जगह से टोटी होती है, जहाँ से पानी ने निकलना होता है, ख़ासतौर पे अगर गर्म पानी निकलना है तो वो हमारे लिए मुश्किल करेगा। सो इसी तरह से जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये देखना होता है कि नेक्स्ट बटन कहाँ देना है, स्टार्ट बटन कहाँ देना है। तो ये जो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन जब ऑन होती है तो ये तमाम जो बटन्स वगैरह आए हुए होते हैं ये फिट्स लॉ के तहत उन्होंने बनाए होते हैं और या डिज़ाइन किए होते हैं कि कहाँ पे उनको ईज़ हो यूज़ करने के लिए। ये जो तमाम बटन्स होते हैं इनको हम एक्शन बटन्स कहते हैं। लिंक्स एंड अदर बटन्स कैन बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऑन वेबसाइट्स, एप्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ क्लिकिंग। सो इनका चांस ऑफ क्लिकिंग करने के लिए उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है। आजकल जो पॉपअप विंडोज हो जाती हैं, अगर आप साइट्स पे जा रहे हैं तो उनको स्ट्रेटेजिकली सबसे आगे ले आया जाता है ताकि आपको लाजमी उसको या तो क्लोज करना पड़े या आपको क्लिक करना पड़े। इसमें हमें नॉट ओनली डू यू वांट टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू द राइट प्लेसेस बट यूजर्स नीड टू हैव अ सिंपल एंड इजी एक्सपीरियंस। अब हमें दोनों काम करने हैं, एक तो यह है कि वो सही जगह पे जाए और दूसरे आसानी से चला जाए, मुश्किल ना हो। सो अगर हम नोटिस करें हाउ विंडोज स्टार्ट बटन ऑलमोस्ट डबल इन साइज, तो विंडो का जो स्टार्ट बटन है वो डबल इन साइज होता है नॉर्मल बटन से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। सो अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो हमने सबसे पहले जो है वो HCI की में जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको हमने डिटेल में आज डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, पीसी बना, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब तक कंप्यूटर ये साइंटिस्ट के पास था, रिसर्चर्स के पास था, तब तक कोई इंटरफेस की ज़रूरत नहीं थी। ऑफलाइन सिस्टम्स भी थे, ऑनलाइन भी जो थे वो बड़े कम्बरसम थे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ही उसको यूज़ कर सकते थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आफ्टर द एडवेंट ऑफ पीसी बनने के बाद हमें ये ख्याल आया कि यार ये जो डॉस्प है ये तो बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रही है, तमाम कमांड टाइप करनी पड़ती है, फिर एंटर दबाना पड़ता है। एंटर दबाने के बाद अगर वो कहीं रुक जाता है तो फिर एंटर दबाना पड़ता है, और फिर अगर उसमें कहीं फंसा होता है तो उस ज़माने में कंट्रोल सी की ऑप्शन होती थी कि कंट्रोल सी दबाएंगे तो ब्रेक होगा, वरना ब्रेक नहीं हो पाते थे, आप प्रॉब्लम में फंसे रहते थे। तो वो एक इशू बन गया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल कंप्यूटर लेके आया, तो एप्पल कंप्यूटर में उसने आइकॉनिक विंडो से पहले, माइक्रोसॉफ्ट विंडो से पहले एप्पल कंप्यूटर्स में जो है वो विंडो स्टाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसमें आइकॉन्स बना दिए गए थे। अब इंस्टेड ऑफ अगर मुझे क्लॉक देखनी है, मैं क्लॉक CLOCK लिखूं और एंटर करूं और उसके बाद क्लॉक देखूं और फिर भी मुझे लगे कि ये तो टाइम नहीं समझ में आ रहा, फिर हेल्प में जाऊं और देखूं कि कैसे उसको टाइम को मैं PM और AM में कन्वर्ट कर सकता हूं, फिर टाइम/T की कमांड देके एंटर करूं और फिर मुझे PM में टाइम आए। सो उसने आइकॉन्स बना दिए कि क्लॉक का आइकॉन बना होगा। आइकॉन का क्या मतलब है? आइकॉन का मतलब है स्मॉल इमेज। अब आप उस इमेज पे माउस की इन्वेंशन हो गई, माउस को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के लिए भी डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लॉक आ जाएगी। सो ये वर्जन हो गया जिससे हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले डिज़ाइन चेंज हो गया, जो आपकी इनिशियल स्क्रीन आने लगी वही टोटल चेंज हो गई, और फिर उसके बाद जब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्रूव होता रहा, हम विंडोज़ में जब PC में भी विंडोज़ आ गई तो हमें यूज़ कराना आम लोगों के लिए को कंप्यूटर्स आसान हो गया, यानी ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना इजी हो गया। इसमें ही फिर डॉन नॉर्मन्स की 2 एग्जांपल भी हमने दी कि अगर आप पुश और पुल को लिखने के बजाय एक तरफ हैंडल कर दें और एक तरफ जहाँ पे आपने पुल करना है वहाँ हैंडल कर दें और जहाँ पे आपने पुश करवाना है वहाँ सिर्फ प्लेट हो और आप उस प्लेट को ज़ाहिर बात है दरवाजे को धक्का ही देना होगा, पुल तो आप कर ही नहीं सकते उसको। सो इस तरह के अगर हम ईज ऑफ स्टाइल डिज़ाइनिंग अगर हम अपने कंप्यूटर इंटरफेसेस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में भी लाएंगे तो
कंप्यूटर का यूज़ और इजी होता चला जाएगा। हमें कंप्यूटर्स को एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट के यूज़ से हटा के कॉमन लोगों तक पहुंचाना था। उस चीज़ के लिए HCI की इन्वेंशन हुई और HCI ने अपना काम किया। फिर इस सारे एस्पेक्ट में क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व था, तो ह्यूमन को इंफॉर्मेशन कैसे आती है ये इसको समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इनपुट कैसे आती है, फिर वो आउटपुट कैसे होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी थी। तो इसमें हमने सबसे पहले विजुअल आई के बारे में समझा कि आई कैसे चीज़ों को देखती है, उसमें कलर्स को कैसे देखा जाता है, इमेज एक्चुअली कैसे आती है। अब रेटिना में ये उल्टी आती है, लेकिन ये दिमाग का काम होता है कि वो हमें सीधी चीज़ दिखाता है और हम उसको सीधी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। फिर ऑडिटरी में हमने देखा कि कान के क्या काम है, वो वेव्स को सबसे पहले लेता है, एम्पलीफाई करता है, फिर अंदर भेजता है, अंदर ड्रम से वो वाइब्रेशन जो है कन्वर्ट होती हैं केमिकल रिएक्शंस में, और केमिकल रिएक्शन से फिर हमारे दिमाग में वो बात समझ में, अल्फाज समझ में, अगर वो उसकी हमारे पास परसेप्शन है, वो ज़बान हमने समझी हुई है तो हमें समझ में आएंगे। अगर वो ज़बान ही हमारे लिए नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमें ये पता होगा कि कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर हमें मतलब नहीं समझ में आएंगे। फिर हमने हैप्टिक टच सिस्टम को देखा कि टच सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। टच सिस्टम जो है वो हमारा काम करता है, वो फीलिंग लेता है। फीलिंग्स जो हैं ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जैसे उंगलियां हैं उनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाया हुआ है। इसी तरह टेस्ट के लिए ज़बान बनाई हुई है, टेस्ट सिर्फ ज़बान से ले सकते हैं। सो हमारे ये सिस्टम्स हैं जिनसे हम सारी इनपुट्स लेते हैं। विजुअल हो गया, ऑडियो हो गया और टच सिस्टम हो गया। फिर हम मूवमेंट को भी देखते हैं। मूवमेंट हमने न सिर्फ ऑब्जेक्ट की भी देखनी होती है बल्कि अपनी भी देखनी होती है। इसमें सबसे पहले किनेस्थेसिस इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हमने अपनी मूवमेंट करनी है तो कौन सी मूवमेंट हमारे लिए आसान है। जिनको खुदा न खास्ता जैसे प्रॉब्लम होता है घुटनों का, तो उनको अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि वो बैठ के नमाज पढ़ें। बैठने में भी प्रॉब्लम है तो लेट के पढ़ लें। इशारा करना हाथों से इशारा करना मुश्किल है तो आंखों के इशारे से कर लें। सो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे हैं। टच सिस्टम में हमने ये भी कहा कि जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनको आंखों की कोई खुदा न खास्ता बीमारी है, उनमें अल्लाह ताला ये सेंसेस बढ़ा भी देता है और वो फिर न सिर्फ टच की बल्कि सुनने की भी सेंसेस को बढ़ा देता है और वो उसमें डिस्टिंग्विश करना ऑब्जेक्ट्स को या अपनी बात को समझना या चीज़ों को समझने में उनको आसानी हो जाती है। मूवमेंट में इसी तरह से किनेस्थेसिस है। फिर रिएक्शन टाइम है कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी तेज़ी से देख लेते हैं, कितनी जल्दी से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, और फिर आपकी अपनी फिटनेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसके ऊपर आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा। सो आज के लेक्चर में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया। इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।